ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये सच में है और अभी भी मेरे साथ मौजूद है। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏ। अच्छा, फिर आपको यकीन आ जाएगा। पूरी पॉडकास्ट बंद हो जाए लाइट सारी। ठीक है। ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਚਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸੁੰਬਲ ਜੀ। अच्छा, होश करो, पानी मंगाइए। ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? तो मुझे एक बाबा जी मिले। मैंने कहा बाबा जी यहाँ पे कोई हो जो इल्म सिखाता हो। ऐसे देखने लगे, सीख लोगी? कहा जी बिल्कुल। उन्होंने पहली बात तो मुझे ये कही कि रात के 12 बजे पुराने कब्रिस्तान है बोर्ड के पेड़ के नीचे। फिर उन्होंने कहा आपने 5 किलो ना टमाटर लेकर आने, 7 छुरी लेकर आने। साथ उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात क्या कह दी कि आपने पूरे 40 दिन नहाना नहीं। अच्छा, फिर ये नपाकी दे विच सारा फिर काम होंदा है? जी बिल्कुल। जब मैं गई हूँ टमाटर लेके, उन्होंने कहा बैठो, इनको काटो, और एक लफ्ज उन्होंने दिया मुझे, वही मैं पढ़ रही हूँ, वही मैं टमाटर काट रही हूँ। जब मैं काट रही हूँ ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा है, नाखन से जैसे ना नाखन, ये चीज़ें ऐसे नाखनों से मुझे फील हो रहा है कि कोई ना यूं उनको खींच के ना अपनी तरफ उनको दफन कर रहा है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀल होना शुरू हो गया है? जब 40 दिन हो गए मुझे, मैंने ब्लैक साड़ी पहनी, बाल शाल खोले, तैयार हुई, फुल तैयार। जब मैं वहाँ पे गई हूँ, वो लोग ऐसे जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स हों। कभी कभी उनके मुझे चलने फिरने की आवाज़ें, फीलिंग्स, जैसे कि मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं यहाँ पे आती थी ना, तो वो जैसे मैं आती हूँ ना तो ऐसे जैसे आगे से कोई खुश हो जाता है मुझे देख के। अगर तुसी थोड़ा जिहा होर थोड़ा जिहा करके विखा दिओ। मेरे पास ना चीज़ें हैं, मैं कोई ना मैजिक शो स्टेज पे या किसी स्कूल में मैजिक शो नहीं कर रही। मेरी रिक्वेस्ट है, जी दोस्तों, मैं हूं खान अली ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਸੁੰਬਲ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਰ ਸਟੋਰੀ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸੁੰਬਲ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾਤ ਭੂਤਾਂ ਛੂਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਸੁੰਬਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੋ? पहली बात तो ये है कि मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, और मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? वो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ जुड़ी रही है। उसको मेरे बचपन से ही पता है शुरू से मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो उसको तो ये सारी चीज़ें पता है ना। तो उसने काफ़ी फोर्स किया मुझे, तो उसको फिर मैं ना नहीं कर सकी, तो मुझे आना पड़ा। ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ 2, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗਰਲਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈਆਂ। जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤ ਗਿਆ,
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। खैर मुबारक। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? जी बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं ਜੀ। और ये सच में है और अभी भी मेरे साथ मौजूद है। ਅਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? जी बिल्कुल। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ हाँ जी बिल्कुल मेरे साथ रहती हैं। 24 ਘੰਟੇ? जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? इनको यानी कि ना बचपन में ना मेरी जो नानी अम्मी थी ना, वो मुझे जिन्नात की और ये जो है ना चुड़ैलें, इनकी स्टोरियाँ सुनाती थी। और वो ये कहती थी कि इनके पाँव उल्टे होते हैं, ये आग के बने होते हैं, ये सारी चीज़ें वो मुझे सुनाती थी। तो ये सुनते सुनते आप 20 साल पीछे चले जाओ, पहले की बात है, मैं बड़ी हुई हूँ। तो मेरे माइंड में जैसी मैं स्टोरी सुनती थी ना, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ जाती थी कि मैंने इनको देखना है, मैंने इनको देखना है। मैंने बहुत दफ़ा बोला नानी अम्मी को मैंने इनको देखना है, लेकिन वो बस स्टोरियों तक एक बात थी ना उनकी, बस स्टोरी, मैंने रोज़ स्टोरी सुननी उनसे। और ये ऐसे जैसे ये शौक मुझ में एक शौक सा नहीं होता, किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, तो किसी को डॉक्टर इंजीनियर, मुझे बस यही शौक था कि मैंने इनको देखना है, मैंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। जी। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ये कुछ भी नहीं कहते, ये अभी भी मौजूद है, ये किसी को कुछ भी नहीं कहते। तो मुझे जब ये शौक पड़ा ना, तो मैंने लोगों की बातें सुननी शुरू की, कोई ये रूह, ये सारी चीज़ें मैंने कहा नहीं, इस पे रिसर्च करनी है, इसको मैंने ना सुनना है, इनको मैंने देखना है, इनसे बात करनी है, ये क्या कहते हैं, अगर ये मौजूद है तो कुछ नहीं कहते। तो फिर मैंने यानी कि इस पे रिसर्च करनी शुरू की कि अक्सर लिखा होता है जिन्नों वाला बाबा, चुड़ैल वाली अम्मा जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ। जी बिल्कुल। और कुछ लोगों ने कार्ड भी छुपवाए होते हैं, हाँ जी 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 जी। और वो स्नैपचैट से भी कुछ चीज़ें इस तरह की सोशल मीडिया पे भी आ जाती थी। तो मैंने ना काफ़ी इनको ना फ़ोन करने शुरू कर दिए, किसी को फ़ोन कर रही हूँ, कभी किसी को फ़ोन कर रही हूँ, यानी कि कोई बंदा मुझे रियल नहीं मिला। टोटल लोग जो थे ना इसमें फेक ही थे, कि किसी को ऐसे मैंने काफ़ी सारे पैसे भी ज़ाया किए लोगों को दे के कि मुझे इन चीज़ों के मुझे सीखना है, मुझे इनसे मिलना है। जाहिर सी बात है ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? पैसे जैसे कि अब दीवारों पे लिखा जी जिन्नों वाला बाबा, बाबा जी मैंने इल्म सीखना है, ठीक है जी आपको सिखा देंगे, आप इतने पैसे जायज़ कैश कर दें, आप आ जाएं, आपको हमने शिगिर्द बैठा लिया, आप मिठाई ले आएँ। तो इसी तरीके में ना मैंने काफ़ी सारे मैंने पैसे ना ज़ाया कर दिए। ऐसे ही तकरीबन कोई 8-10 दिन 20 दिन गुजर गए। फिर ना एक कोई बंगाली अम्मा जी थी, वो कोई बंगाली इल्म करती हैं, वो यानी कि करती थी, अब तो उनकी एज ज़्यादा हो गई तो वो सिखा नहीं सकती। तो उन्होंने ना मुझे एक दरबार का बताया, ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ? वो मैं मुनासिब नहीं समझती बताना, क्योंकि अच्छा जी कुछ जी 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 जी, बिल्कुल। चले ना बताएं। जी। तो उन्होंने कहा कि आप फलां दरबार पे चली जाएं। मैं वहाँ पे जाने लग गई, तकरीबन 3-4 दिन में गई हूँ। मैंने कहा यहाँ पे कुछ मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, कोई इस तरह का बुजुर्ग जो जिसके को देख के बंदे को आइडिया हो जाता है ना कि ये इस बंदे के पास ये चीज़ होगी। तो मैंने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसे कोई 8-10 दिन मुझे गुजर गया, मैं रोज़ जा रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जाऊँ तो सही। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया, वहाँ पे मुझे एक बाबा जी मिले। मिल गए फिर हाँ, बाबा जी? एक बाबा जी ने ऐसे ही बैठे हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से ना ही उन्होंने कुछ खाया और ना ही जैसे कि वो नहाए धोए हैं। ਅੱਛਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे सदियों से ही उधर बैठे हैं, कि मेरी नज़र उन पे लेट जैसे पड़ी हो या कुछ इस तरह का।
मैंने कहा बाबा जी यहाँ पे आप, मैंने कहा इनसे पूछती हूँ, मैंने कहा बाबा जी यहाँ पे कोई हो जो बुजुर्ग जो इल्म सिखाता हो, यहाँ पे कोई आपकी नज़र में है कोई पुराने आलम जो इल्म सिखाएं, तो मैंने इस चीज़ों पे रिसर्च करनी है। वो मुझे ना एकदम से ना जैसे स्टैंड हो जाते, ऐसे देखने लग गए, कहते सीखना है। मैंने कहा जी सीख लोगी? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आप मिलना चाहती हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं मिलना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना रात को ना, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? पहली ये बात मैं आपको आगे जाके भी बता दूंगी और अभी भी मैं ये क्लियर कर दूं कि इन चीजों से ना इल्म नहीं होता, इनको अच्छा, गलत अच्छा। इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। अच्छा 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 और जी, वैसे भी मैंने उनको कहा था कि मुझे ये सिर्फ शौक है ਦੇਖਣੇ ਦਾ। देखने का, बातें करने का इनसे। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ हाँ जी। ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ? इंसानों से तो सभी बातें करते हैं, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ इन ਸਹੀ ਹੈ। चीजों पे भी तो रिसर्च जरूरी है ना। ਹਾਂ जो ਇਹਨਾਂ ਦੇ। लोग बातें, जो लोगों ने अफवाहें इनके बारे में फैलाई हुई थी सारी, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? तो मैंने कहा मैंने इनका वो गलत इस्तेमाल, पहली बात है करना नहीं है, और दूसरी बात है कि ये गलत इस्तेमाल होते भी नहीं है। ਜੀ ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने इनसे मिलना है। उन्होंने कहा कि कुछ बातें आपको बताऊंगा, आपने इन पे अमल करना है। मैंने कहा जी ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे कहा ना, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? जी उन्होंने पहली बात तो मुझे ये कही कि आपने ना रात के 12 बजे पुराने कब्रिस्तान आना है, बोर्ड के पेड़ के नीचे। ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ? हाँ जी, अच्छा वो बोर्ड का दरख्त है, उधर आपने उसके नीचे आना है। फिर? मैंने कहा ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा आपने 5 किलो ना टमाटर लेकर आने, 7 छुरी लेकर आनी। 5 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਦੇਖ ਪਕਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? वो उन्होंने मुझसे वैसे मंगवाए थे टमाटर के, आपने लेकर आने हैं। मैं आपको बात, ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਸ਼ੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਸ਼ੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ये आपको चीज़। किसने कह दिया? अंडे शंडे मोमबत्तियां ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे ज्यादा इल्म टमाटर पे होता है। ठीक है। टमाटर 5 किलो में लेकर गई हूँ और 7 छुरी लेकर गई हूँ। और जब मैं वहां पे साथ, उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात क्या कह दी ਜੀ कि आपने पूरे 40 दिन नहाना नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹਾਣਾ ਨਹੀਂ? 40 दिन आपने नहाना नहीं है। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਾਣਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा नहीं सो? नहीं अभी मैं सिंगल हूँ, मैं शादी कर भी नहीं सकती। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ? ये जो मेरे साथ है ना, ये नहीं करने देते। ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ नहीं? जब इस काम में इंसान आ जाता है ना, फिर शादी ना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, शादी अच्छा। नहीं कर सकता इंसान। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾਣਾ ਨਹੀਂ? वो मैं थोड़ी सी हुई कंफ्यूज्ड कि यार जून जुलाई। ਅੱਛਾ और- ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, जी बिल्कुल। ਉਤੋਂ ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? हाँ जी, पूरे 40 दिन नहाना नहीं है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਪਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जी बिल्कुल। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਪਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी ना, यानी कि ये जब इल्म आप शुरू कर लेते हो ना, तो फिर आप जब तक आपका कोई भी इल्म है ना, वो चीज़ जो आपका चिल्ला काट रहे हो, जो भी आपका कंप्लीट नहीं ना हो जाता, आप नहीं नहा सकते। ठीक है। और मैंने थोड़ा सा पहले मैंने कहा यार ये कहीं ऐसे तो नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, ओके, नहीं नहाएंगे। और 40 दिन बात भी नहीं किसी से करनी, 40 दिन की नहीं करना? किसी से बात भी नहीं करनी मैंने। क्यों? ये यानी कि उनके कुछ इल्म दे अच्छा अच्छा कोई की ਉਹਨਾਂ ਦੀ जी जी शराइत पर्सनल होती है। चीज़ां शायद जी, जी जी शराइत होती है ना, कुछ जी, जी। चीजें होती हैं। मैंने थोड़ा सा सोचा कि घर वाले, फैमिली, ये कैसे होगा। फिर मैंने, जो मेरी आप दोस्त ने अच्छा अच्छा जी बताया आपको मेरे बारे में, तो जी जी मैंने उन्हीं को बोला कि यार मुझे ना 40 दिन ना तुम्हारे घर रहना है, अच्छा अच्छा एक मुझे अलग से रूम चाहिए। तो उसने मुझे एक अपना अलग से गेस्ट रूम दे दिया। तो वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया। जब फर्स्ट दिन मैं गई हूँ ना वहाँ पे,
5 किलो टमाटर पकड़े हैं, रात के 12 बजे छुरी पकड़ी है, मैं जा रही हूँ। मैं पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गई हूँ। जब मैं वहां पे पहुंची हूँ ना, तो मैंने पहले तो काफी ढूंढा कि बोर्ड का दरख्त कहाँ है। ऊपर से अंधेरी रात, नजर भी नहीं आ रहे थे। काफी दरख्त होते हैं कब्रों में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ कब्रिस्तान पुराने ਦਾ? जी बिल्कुल, मुझे पता था कि भाई ये इधर नया कब्रिस्तान, इधर अब कब्रें बन रही है। जो पुराना कब्रिस्तान था वो तो जगह कंप्लीट हो चुकी थी, उधर तो कब्रें बन ही नहीं रही थी। जी जी। तो वो फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ये पुराना कब्रिस्तान है। बोर्ड का दरख्त ढूंढती रही मैं, काफी। मैं एक द्वार पे बैठी, फिर मेरी नजर पड़ी कि लो, ये बोर्ड का दरख्त है। जब मैं वहां पे गई हूँ तो बाबा जी मौजूद थे वहां पे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ? खौफ किस चीज का? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਿਨੇ ਲੰਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੌਫ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कब्रिस्तान में ना रात को कुछ होता है, ना ही दिन को कुछ होता है। वो भी तो हमारी तरह इंसान ही थे। अब वो चले गए हैं, बल्कि कब्रिस्तान में ज्यादा सुकून और खामोशी होती है। ये दुनियादारी से ना ज्यादा सुकून मिलता है वहां पे ਉਹ ਵੀ जाके। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ जी ਕਿ बिल्कुल। ਉਹ ਵੀ वो ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਡਰਨਾ? हाँ जी ਤੇ बिल्कुल। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं नहीं, वो भी हमारी तरह कुछ भी नहीं कहती। फर्क इतना है कि हमें वजूद मिला है, हम नजर आते हैं, वो नजर नहीं आती। कुछ भी नहीं कहती। तो जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे बैठो, टमाटर काटो और इन टमाटरों को ना दफन कर कहाँ दो। बैठना? कहाँ? कब्र के पास? हाँ जी, कब्रिस्तान में ना बोर्ड के थोड़ा सा ना, वो तो बोर्ड के बिल्कुल नीचे बैठी थी, मैं थोड़ा सा बोर्ड से साइड पे होकर बैठी। उन्होंने कहा जी। इधर ही बैठ जाओ। उन्होंने आगे आने की इजाजत नहीं दी। अब ये तो मुनासिब नहीं समझा कि बुजुर्ग हैं, तो मैंने वहां पे टमाटर काटे। उन्होंने कहा ये भी काटो। उनको मैंने काटा। उन्होंने कहा यहाँ पे दफन कर दो। टमाटर ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? उन्होंने कहा इधर ही आप दफन कर दो। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, मैंने उनको काटा, पीसेस किए, करके मैंने दफन किया। और उन्होंने कहा अब जाओ घर। मैं थोड़ी सी हैरान हुई कि ये क्या, कोई चीज नहीं बताई, कुछ दिया नहीं पढ़ने को, कुछ नहीं। तो ये कहते कि दफन करो और जाओ। खैर मैंने किया। कहते कल फिर इसी टाइम आ जाना। मैंने उनको दफन किया, मैं दफन करके घर आ गई। रास्ते में मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाकी लोगों की तरह ये फेक तो नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो देखो एक बुजुर्ग आदमी है, 12 बजे रात को इतनी दूर ये आया है, मेरे लिए ही आया है। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ? नहीं, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ नहीं। ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैं वही अपनी रूटीन में बैठी हूँ, सोचने लग गई कि यार ये क्या है। अब चलो, फिर मैंने कहा अगले दिन देखती हूँ क्या होता है। 40 दिन का जो टाइम था। दूसरे दिन मैं फिर गई। फिर ही उसने कहा इधर ही खड़ी हो जाओ। यानी कि एक कदम पीछे ही उसने, जहाँ मैंने दफन किए थे, उसने कहा एक कदम उधर। मैं भी पीछे ही थी, उसको मुझे आवाज आई। बाबा जी तो मुझे नजर ही नहीं आए। उन्होंने कहा इधर ही खड़ी हो जाओ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਟ ਐ ਸੀ? अंधेरा था, काफी अंधेरा था। कब्रिस्तान में चानन कहाँ से आ गया भाई? ਅਕਸਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ। जिन कब्रों में लाइटें होती ना, वहां पे इल्म नहीं होता। क्योंकि वहां पे इजाजत ही नहीं होती, लोग जा ही नहीं सकते। ये कब्रिस्तान कुछ इस तरह के पुराने कब्रिस्तान का मतलब यही था कि वो तो सदियों से जैसे कि बंद, बड़ा जनाजे कफन दफन नहीं ना हो रहा था वहां पे, वो जगह फुल हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि इधर एक कदम पीछे खड़ी हो जाओ। मैंने जो आवाज आई, मैंने देखा है कि मुझे बुला तो लिया है, अब ये नजर क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा इधर ही खड़ी हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं ऐसे मैंने दिल में कहा ठीक है, मैं खड़ी हो गई हूँ। खड़ी हो गई। उन्होंने कहा टमाटर काटो। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ, फिर से मैंने टमाटर काटे। टमाटर काट के अब मेरे जो उन्होंने देखा भी, उनको पता चल गया कि टमाटर कट चुके हैं। उन्होंने कहा इनको दफन कर दो। मैंने दफन किए। दफन करके उन्होंने कहा जाओ जरा ध्यान से जाना। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? फिर मैंने यानी कि उनको ना दफन किया। दफन करके उनका जाओ ध्यान से जाओ, खैर से जाओ। मैं आ गई। तीसरे दिन ना थोड़ा सा मुझे ना, ਅੱਛਾ ਮਾਜ਼ਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
आप मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको मुझे पे यकीन नहीं है, आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, मुझे फील ਨਹੀਂ हो ਉਹ रहा है। ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। अच्छा, असल में ना जब स्टार्ट था ना तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा अच्छा अभी तो 2 दिन हुए हैं ना, अभी तीसरा दिन है ना अभी। अच्छा अच्छा आप जैसे सुनेंगे आपको पता चलेगा ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब तीसरे दिन मैं गई ना, उन्होंने ना मुझे एक लफ्ज दिया। अच्छा तीसरे दिन उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 दिन उन्होंने कुछ नहीं ਦਿੱਤਾ? हाँ, 2 दिन उन्होंने मुझे कोई पढ़ने के लिए चीज नहीं दी। और तीसरे दिन जब मैं गई हूँ टमाटर लेके, उन्होंने कहा बैठो, इनको काटो, और एक लफ्ज उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने कहा ये आपने ना 11 दफा पढ़ना है, 11 दफा। और वो लफ्ज ऐसा था कि मैंने जिंदगी में नहीं कभी सुना। ਉਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ऐसा? वो बताने की इजाजत नहीं है अच्छा जी। जी। कोई भी इंसान आपको नहीं बताएगा, आप किसी से भी मेरे अलावा पूछेंगे तो। मैंने कौन सा इंसान जिनके पास ये चीजें हाँ, हैं? जिनके पास ये चीजें हैं ना, जी जी ये आपको ना तकरीबन ये नहीं होता कि हजारों में लाखों में से किसी एक बंदे के पास होंगी। ये हर बंदा कहता है ना मेरे पास एक होता, किसी के ਮਸਲਨ पास ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ नहीं, ਚੀਜ਼ ਦੇ इजाजत ਬਾਰੇ? नहीं होती, समझ अच्छा में इजाजत नहीं नहीं होती। है, ठीक है। तो मैंने पहली दफा मैंने ये लफ्ज सुना, मैंने कहा अच्छा। खैर मैंने वही पढ़ना शुरू किया, मैंने 11 दफा जैसे मैंने पढ़ा ना, पढ़ती गई तो मुझे ना ऐसे ना थोड़ा सा ना फील होने लग गया कि कुछ चीजें ना मेरे आसपास है ना, जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी, काट रही थी, कुछ चीजें ना ऐसे मुझे थोड़ी थोड़ी ना फील होने लग गई कि मेरे ना ऐसे एहसास नहीं जैसे बंदे को होता कि कि मेरे कोल कोई बैठा हाँ है या मेरे को चल हाँ, रहा है कोई कि चीज। नजर नहीं ना आती चीजें, तो फिर एहसास होने लग गया मुझे कि कुछ इधर उधर है, मेरे दाएं बाएं कुछ चीजें हैं। फिर खौफ आया कुछ? कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे कौन सा कुछ कहना था, वैसे मैं उनको फील कर रही थी। मैं तो थोड़ी सी अंदर से ना जैसे बंदा खुश के जैसे कि अब मेरी बात जो है ना, जो मेरी दुआ है पूरी हो रही है कि मुझे ये चीजें ना फील होने लग गई फिर हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ? बिल्कुल, मुझे उन पे भी थोड़ा सा ना जैसे कि थोड़ा सा क्या काफी यकीन हो गया भाई। जब ऐसे ना उन्होंने कहा अब जाओ घर, और सीधी घर जाना, ध्यान से जाना है। पहले से जैसे कि बंदा थोड़ा सख्त स्ट्रिक्ट होकर कहता है कि अब और ज्यादा ध्यान से जाना है आपने। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ हाँ ਜਾਣਾ है? हाँ जी। तो मैं फिर वापस आ गई, घर आई, घर आके थोड़ा सा मैं जैसे अंदर अंदर बंदा थोड़ा सा फीलिंग्स कुछ बेहतर सी हो जाती हैं कि यार अब कुछ किरण एक उम्मीद की कि मुझे अब ये चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी, बातें करने लग जाएंगी मुझसे, कि मैंने सच ऐसे 5वां 6वां दिन 7वां दिन ऐसे करते 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 ना 20 दिन हो गए मुझे। ਅੱਛਾ 20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਮਾਟਰ हाँ ਕੱਟ जी ਰਹੇ ਹੋ, ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी ਅੱਛਾ 20 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ। जब 20 दिन हुए ना, 20वें दिन जब मैं गई तो वो मुझे रोज एक लफ्ज देते थे चेंज करके पढ़ना पढ़ना। जब 20वें दिन में गई ना, उन्होंने मुझे लफ्ज एक दिया पढ़ने के लिए, वही मैं पढ़ रही हूँ, वही मैं टमाटर काट रही हूँ। काट में के मैं उनको ना यानी कि दफन ऐसे होने गया, मैं दफन करने के जब मैं काट रही हूँ ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा है नाखन से, जैसे ना नाखन ये चीज़ें ऐसे नाखनों से मुझे फील हो रहा है कि कोई ना यूं उनको खींच के ना अपनी तरफ यूं उनको दफन कर रहा है। ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी, मैं उनको काट रही हूँ और जब मैं उस पर मिट्टी डाल रही हूँ तो मुझे ऐसे मिट्टी नजर आ रही है, ऊपर डाल रहे हैं वो मेरे साथ, ऐसे मेरे इर्द गिर्द ना यानी कि मुझे नजर आ रहे हैं वो यूं उन्होंने मेरे साथ साथ ना ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। और मुझे उनके नाखन जैसे कि ये मेरे नाखन है, मुझे ना नजर आ रहे हैं उनके नाखन। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਕਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ? अक्स तो उनका मुझे फील तीसरे दिन ही चौथे दिन ही यानी कि होने होना लग गया था। शुरू हो गया जो उन यानी कि हेल्प जो है ना वो मेरी करने लग गए, मुझे रियल नजर आने लगे कि मेरी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मैं ऊपर मिट्टी फेंक रही हूँ तो वो भी ऊपर फेंक रहे हैं नाखनों से, मैं उनको दफन कर रही हूँ तो वो भी साथ ऐसे दफन कर रहे हैं, ऊपर यूं मिट्टी नाखनों से मिट्टी डाल रहे हैं। जैसे कि मैं इधर बैठी हूँ तो वो उस साइड पे हैं तो वो यूं करके मिट्टी डाल रहे हैं, यूं साइडों से यूं मैं करके डाल रही हूँ। तो वो मुझे फील होने लग गया। ऐसे तकरीबन हमारा चलता गया। जैसे जब मैं 20वें दिन ये सारी चीज़ें करके वापस आई ना तो मैं आगे आगे आ रही हूँ और मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे हम अक्सर आ रहे होते हैं तो बच्चे साथ में चीज़ें जो लेके कोई आ रहा होता है ना तो बच्चे पीछे पीछे होते हैं, तो मुझे भी ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं आ रही हूँ ना तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे साथ साथ आ रही हैं।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, मैं जब कब्रिस्तान से निकली हूँ और जब मैंने चलना शुरू हुआ है, बोर्ड के जैसे मैंने पेड़ को ऊपर देखा तो मुझे ऐसे जैसे कि ऊपर से चीजें उतरती फील हो रही हैं। वो मेरे यूं साथ साथ में कब्रिस्तान से निकलती आ रही हूँ, मेरे साथ साथ इर्द गिर्द मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, जी ਕੋਈ ਮਰਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ये बात जो मैं आपको सच कहूँ ना, मुझे भी नहीं समझ आई कि मुझे तो किसी ने क्या देखना था, मैंने भी किसी को नहीं देखा। कि होता है ना कोई इंसान आपको रास्ते में नजर आ रहा होता है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, हाँ जी। मैंने भी नहीं किसी को देखा। यानी कि ना ही मुझे किसी ने क्या देखना था। अगर मैं किसी को देखूंगी तो मुझे लगेगा ना कि भाई फलां बंदा गुजरा, इसने मुझे देख लिया है, लेकिन मुझे खुद को कुछ नजर नहीं आया, कोई इंसान नजर ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं नजर आया। अच्छा, फिर वो 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ऐसे जैसे मेरे साथ साथ वो घर यानी कि मेरे पीछे पीछे आने लग गए हैं। तो फिर ऐसे करते करते ना स्टेप बाय स्टेप यही रूटीन मेरी रही। वही मुझे उनकी कब्रिस्तान में फीलिंग्स होनी, कभी कभी उनके मुझे चलने फिरने की आवाज़ें, फीलिंग्स जैसे कि अब मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं यहाँ पे आती थी ना, तो वो जैसे मैं आती हूँ ना तो ऐसे जैसे आगे से कोई खुश हो जाता है मुझे देख के। जैसे कि मेरी मैं 2 कदम चलती थी कब्रिस्तान की तरफ तो वो आगे से 4 कदम चल के ਤੁਸੀਂ ऐसे। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, कुछ भी नहीं होता। आप पहली बात तो ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ तो- ऐसे स्टेप बाय स्टेप 40 में यानी कि 20 25 30 40 दिन ऐसे यानी कि हो गया मुझे। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ जी, हर रोज ऐसी यही रूटीन थी कि टमाटर लेके जाने, उनको काटना है, उनको वही यानी कि सारी चीजें थी, लेकिन लफ्ज जो था ना वो रोज चेंज करके यानी कि मुझे वो देते थे। मैंने रोज वही पढ़ना होता था, 11 दफा पढ़ना है, 21 दफा पढ़ना है, आपने 41 दफा पढ़ना है। तो ये सारी चीजें यानी कि होती थी। फिर उसके बाद यानी कि जब लास्ट था ना 40 दिन, मैं बड़ी खुश हुई कि शुक्र है या अल्लाह अब आखिरी दिन है। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ 40 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਾਹਿੰਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਿੰਮਤ ਹੋ। ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ जब 40 दिन हो गए तो मैं बड़ी खुश। पहली जब आपने बात की कि बड़ी आपकी हिम्मत है, कब्रिस्तान में सन्नाटा होता है। जब मेरे बचपन से ही मुझे यही चीज़ें सिखाई गई हैं, मेरे यानी कि कहानियाँ मैं सुनती गई हूँ, तो मेरे ये डर शर ये चीज़ें नहीं है मेरे पास, मुझे डर लगा ही नहीं। वो भी हमारी तरह इंसान है, मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। जो कब्रों के अंदर है वो कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, वो वो भी तो कुछ भी इंसान नहीं। ही थे ना, वो भी तो हाँ, इंसान पहले थे। इंसान ही सन। वो भी तो इंसान ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ जी। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। वो भी कुछ भी नहीं कहते, वो भी नॉर्मल हैं। वो आपको कभी कुछ भी नहीं कहेंगे। पहले अभी आपको कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कह रहे। तो बस फिर कुछ भी नहीं है। जब 40 दिन हो गए मुझे, मैं थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा खुश थी। पहली बात तो कि मेरा जो ड्रीम था बचपन से वो पूरा हो गया, और मैंने इतनी मेहनत की इस पे, सच में मैंने बड़ी मेहनत की। और जून जुलाई के तकरीबन 2 माह मैं नहाई नहीं। मैंने ब्लैक साड़ी पहनी, बाल शाल खोले, तैयार हुई, फुल तैयार बड़ी हुई। ਗੱਲ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾਕ 40 ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਾਪਾਕੀ 'ਚ ਕੱਢੇ। जाहिर बात है, मेरा जैसे अब हम किसी मिशन पे जा रहे हैं,
तो उसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपका वो मिशन जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये मेरा एक मिशन था। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता ना, मुझे इस तरह इन चीज़ों का जुनून था ना, मुझे कुछ भी करना पड़ता, मैंने कर जाना था। तो मैं कर गई। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो रेडी होके वो लोग ऐसे जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स हों। वो रेडी होके ਤੁਸੀਂ ਗਏ? मैं बिल्कुल तैयार होके ब्लैक साड़ी पहन के फुल मेकअप बाल शाल। ਕਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ? ये लोग ब्लैक साड़ी पहनने का रीजन ये है कि एक तो ब्लैक कलर इनको पसंद होता है। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ। हाँ जी, ये ज्यादा ही कलर दो ही पसंद करते हैं, या ब्लैक या वाइट। ठीक है, ये इनको सिर्फ दो ही कलर पसंद होते हैं, या ब्लैक या वाइट, ही यूज ज्यादा करते हैं। ब्लैक साड़ी ऊपर से अंधेरा अच्छा, था। ये भी यूज करते हैं? यानी कि यूज का मतलब है कि अगर इनको पसंद जो है ना, पसंदीदा चीजें, जैसे लोग कहते हैं कि ब्लैक कपड़े में नींबू डाल को फेंको, और वाइट जैसे कि वो कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं जी। तो हमारे जो कफन होते हैं वो वाइट होता है। जैसे इन दोनों कलरों की अहमियत है, जैसे कि जन्नत दोजख में भी ये दो कलर मुयस्सर हैं, तो वैसे दोनों कलरों का जो ताल्लुक है ना, ये हर फील्ड के जो है ना अल्लाह ताला की मखलूक उनके साथ है। जैसे कि हम मरेंगे तो वाइट है, अगर हम दोजख में जाएंगे तो ब्लैक है, जन्नत में जाएंगे तो वाइट है। तो वैसे इनके साथ भी यही कलर जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे साथ ये दो कलर जुड़े हुए हैं। ਜੀ, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? फिर ये उन्होंने फिर मैं बाबा जी से मिली। बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा, नसीहत है, आपको ये इल्म मैंने दे दी है, आगे आपने किसी को भी नहीं देना। तो मैंने, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये जो हमें चीज़ इल्म दे रहे होते हैं, इनसे हम सवाल नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि हम यूं खड़े होते हैं क्योंकि हम उनके शागिर्द होते हैं, वो हमारे उस्ताद होते हैं, तो उनको थोड़ा सा तलख और ऊंची आवाज़ पसंद भी नहीं होती। मैंने कहा जी। तो मैंने उन्होंने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन लोगों से सवाल जवाब नहीं होते, बुजुर्गों से और उस्तादों से सवाल जवाब नहीं होते। फिर उसके बाद मैं जब गई हूँ वहाँ पे, वो सारी चीज़ें ऐसे खुश होके, मैंने कहा मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। वही साड़ी पहनी हुई थी मैंने, यानी कि टमाटर वही दबाए मैंने कहा मेरा यहाँ पे एंड हो गया। अब इसके बाद में जाहिर सी बात है कब्रिस्तान का मेरा काम ख़त्म हो गया। 40 दिन पूरे हो गए? हाँ जी, 40 दिन का मेरा जो चिल्ला था, मेरा जो भी था काम, वो मेरा पूरा हो गया। फिर मैं घर आई हूँ, आके मैंने शावर लिया है, अच्छे से मैं फ्रेश हुई हूँ, और वो लोग आराम से, वो जो मेरी चीज़ें अच्छा, थी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ वो ਉੱਥੇ ਨੇ? मेरे साथ ही रहते हैं, अभी भी मेरे साथ ही हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ जी, मेरे साथ ही हैं, मेरे ਇਹ साथ ਸਾਡੀ रहते ਹੁਣ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? हैं। जी बिल्कुल सुन रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? उनको हर ज़बान की समझ आती है। ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ? जैसे हम नॉर्मल है ना, वो भी वैसे ही नॉर्मल है, ना वो ड्रोने हैं, ना वो कोई आके बने हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे हम ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦੇ ਨੇ? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे आपस में रिलेशन होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वैसे इनके भी रिलेशन होते हैं, इनके भी रिलेटिव होते हैं। जैसे हमारे में शादियां होती हैं, वैसे इनमें भी होती हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, इनके भी होते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? इनको मैंने ना सिर्फ हासिल किया है, इनको रिसर्च किया, इनको पढ़ा है, इनको मैंने मुलाजिम नहीं रखा। ਨਹੀਂ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? यही नॉर्मल, मुझे जी सुन रहे हैं, इनको समझ लग रही है। ਸੁਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਹਾੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਜ ਡਰੋਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कुछ भी नहीं होता। यही सारी चीज़ें मैंने सुन के तो इतनी मेहनत की, इन पे मैंने रिसर्च की, इनसे मैंने बातचीत करनी शुरू की है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल है, हमारी तरह ही है। आवाज़ भी नॉर्मल है, जैसे मैं इनको से बात करती हूँ नॉर्मल, वैसे ही ये मुझे जवाब देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ ਇਲਮ, जी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? नहीं, दोबारा नहीं मिले? नहीं मैंने, यानी कि जब मेरा एक मिशन पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया, मैंने उनको, यानी कि दोबारा मैं नहीं गई। हो सकता मैं जाऊं तो वो उधर बैठे हों या ना हो, वैसे भी उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़ईफ़ थे,
तो मैंने दोबारा यानी कि नेक्स्ट मैं गई नहीं उधर हूँ दरबार ਇਹ पे, ਇਹ ਇਹ ਵੀ देखा ਸੁਣਨ नहीं ਵਿੱਚ था ਆਇਆ ਕਿ ठिकाना। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ नहीं, ये सारी बातें ही हैं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ये ਚੀਜ਼ਾਂ। काला इल्म जो है ना, ये एक जमाना था। काला इल्म ये नहीं कहते कि नहीं है, एक जमाना था ना जो पहले ये काला इल्म होता था, चलता था। लेकिन ये बाद में जो बाबे हैं ना, ये हमारे पास काला इल्म है, हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने रिसर्च कर ली है, इस जमाने में किसी के पास असली अमल, असली इल्म है ही नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। मेरे पास तो है। मैंने ये नहीं कहा मेरे पास इल्म है, काला इल्म है, ये नहीं है। मेरे पास चीजें मौजूद हैं, तो उनका ये इल्म से कोई हासिल ताल्लुक नहीं है। नहीं, इल्म वो तुसी पढ़ के ही हासिल किया है ना, वो मैं- काले इल्म में ही आता है ना जो लफ्ज आपने पढ़े हैं। अगर देखें, अगर नहीं पढ़े तो फिर आपके पास किस तरह आ गए? इल्म आपके पास होगा। मेरी बात सुने, इल्म में ये है कि एक होता है इल्म जी, पुतला दबा दो, नींबू दबा दो, कब्रिस्तान में रख दो, इसको कहते हैं काला इल्म। और ये फलां का पुतला दबा दो, ये बंदा मर जाएगा इतने दिन में। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, पुतला दबाने से कोई नहीं मरता। और ये जो इल्म है ना, ये अलग है। इनसे बात करना, इनको रिसर्च करना, आप देख लें, हम कुरान पाक चलें तो उसमें सूरत है, इन पे एक जिन्नों पे एक पूरी सूरत है। अगर हम उसका भी चिल्ला काटे ना, तो ये लोग उससे भी हमारे सामने आ जाते हैं, हमसे हम कलाम होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग जो कुरान पाक में इनके ऊपर एक पूरी सूरत लिखी हुई है, तो इनका काले इल्म के साथ जो है ना, इस चीज का काले इल्म के साथ ताल्लुक नहीं है। इसको हम काले इल्म के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਮੜ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਮੜ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ। ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ मुझे इनकी मौजूदगी का ना एहसास होने लग जाता है ਕਿ ਹੈ ਵੀ। हाँ जी, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो उनके एंट्रेंस पे मुझे एहसास हो जाता है कि इनके घर में ये चीज़ें हैं। और उनको मैं कुछ कह नहीं सकती, सिर्फ मैं ये पूछ सकती हूँ कि ये अगर आपके घर में कुछ है तो इनका इधर रहने का क्या रीज़न है। ਇੱਥੇ क्यों ਕਿਉਂ है? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ, किस क्यों है? मकसद से? लेकिन उसमें ये होता है कि बाज़ घरों में ना इंसान भी रह रहे होते हैं, जिन्नात भी रह रहे होते हैं, लेकिन ये कहते किसी को कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारी ज़्यादातर छतों पे होते हैं, जिन्नात होते हैं। हमसे तो ज़्यादा आबादी इनकी है हाँ, दुनिया इन्ना में। दी आबादी जी सही बिल्कुल, बात ये है, हर बस जगह पे मौजूद है। हाँ जी, हर जगह पे मौजूद है, लेकिन कहते ये किसी को कुछ भी नहीं है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भागना है भाई इन्होंने? क्यों भागेंगे? कुछ भी नहीं कहते। इंसान को देख के क्यों भागेंगे? इंसान क्या कहते हैं? इंसानों के साथ ही तो ये रहते हैं। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। अगर ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं ना, पहली बात तो ये है कि ये किसी को कुछ भी नहीं कहती, किसी को नहीं छेड़ती। और वैसे भी अगर मर्द हजरात जो है ना, इनको चाहिए, खुद एहतियात ज़रूरी है कि ये पेड़ों के नीचे ना जाएं वाशरूम वगैरह। जैसे कि गांव के लोगों की आदत होती हाँ, है, अक्सर होती है। हाँ, वो पेड़ों के नीचे। अभी भाई तुम्हें नहीं पता, तुम पेड़ के नीचे बैठ रहे हो, इन चीज़ों पे इनके साया ज़्यादा होते हैं। अब उनको एसी शेसी तो उनके पास लगे नहीं होते, उन्होंने दरख्तों पे ही रहना होता है। तो पहली बात उनको चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि जब ये इनकी मौजूदगी होती है ना, कोई मर्द हजरात कोई इस तरह का कोई काम करता है ना, तो ये वहाँ पे होते हैं, तो उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। उसमें ये होता है, ये किसी भी इंसान की शक्ल में आके यूं पास से गुजर जाएंगे, को उसको ये हो कि भी ये बंदा इंसान यहाँ से गुजर रहा है, मैं यहाँ पे वाशरूम या कुछ इस तरह का ना काम करूँ, ना बैठूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान यही काम करता है, तो उसको वो नहीं समझता, उनकी मौजूदगी को नहीं समझता। तो फिर वो जाहिर सी बात है, फिर वो नहीं छोड़ती, क्योंकि वो फिर उनको ना गुस्सा आ जाता है कि भाई हमने इसको एहसास भी दिलाया अपनी मौजूदगी का, फिर भी इसने ये काम किया। फिर जब वो लग जाती हैं, वो फिर जिद चढ़ जाती हैं,
फिर वो उनको नहीं छोड़ती, यानी कि ਐਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। सानी से मेरे ख्याल में छोड़ती ही बिल्कुल भी नहीं है। सानी से पीछा क्यों छोड़ेंगे भाई, जब आपको उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਇਆ हाँ जी। ਵਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। हाँ जी। जी जी। अगर आप अदरवाइज आप जैसे कि कोई भी इंसान है ना, अगर वो वहां पे पेड़ के नीचे वो हैं, तो वो अगर आप वो गांव के लोग वॉशरूम वगैरह कुछ इस तरह की चीजें करने लगते हैं तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। किसी इंसान की शक्ल में आपके पास से गुजर जाएंगी या कोई साये की शक्ल में आपके पास से गुजर जाएंगी, यानी कि अब आपको समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये, आपको पेड़ों के साथ या पेड़ों के नीचे ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए। ਅੱਛਾ ਸੁੰਬਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। जी ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀ, जी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ, जी ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, हम्म, ਚੱਲਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ जी ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं तो फिर आपको यकीन आ जाएगा? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। वैसे आपको यकीन नहीं है? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੀਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, जी ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੀਤਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ बिल्कुल। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਈ, ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਲਾਈਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। अच्छा, फिर आपको यकीन आ जाएगा? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ। वैसे आपको यकीन नहीं है मुझ पे? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। आप कैसे कह रहे हैं कि आपने ये चीज आज तक सुनी नहीं है? ये तो हमारे इंसानों से पहले की मौजूद है। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। वो चलिए आपको मैं ये करके दिखा देती हूँ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ फिर आपको ਦਿਖਾਓ। यकीन आ जाएगा। जी। लेकिन आप ये बात जो है ना कि ये चीजें नहीं है, ये गलत है, ये चीजें ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ये तो ਪਤਾ हम मान के है। ਹੈ, ਇਹ ਹੈ हाँ, अगर अभी ਕਿ लेकिन आप ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, मैं ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੇ। अच्छा, अब आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जैसे आप मान गए कि ये चीजें दुनिया में हैं, जिन्नात हैं, लेकिन अब आप कंफर्म आपको तब होगा जब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी कि मेरे पास है, कंफर्म जी। तब होगा। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ठीक है। ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। फिर आपको यकीन हाँ हो पूरी जाएगा। पॉडकास्ट बंद हो जाए, लाइट सारी। ठीक है। ओए ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਚਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸੁੰਬਲ ਜੀ, अच्छा अच्छा, हाँ जी, ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਦਿਆ ਜੀ। होश करो, पानी मंगाइए। मेरा दिल, सही गल है,
ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਅਹਿਸਾਸ, ਕੁਛ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੇਨ ਸੋਚੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। मेरे पास ना चीज़ें हैं। मैं कोई ना मैजिक शो स्टेज पे या किसी स्कूल में मैजिक शो नहीं कर रही। अगर आपने ये मैजिक शो करवाना था तो किसी और को बुला लेते, मुझे क्यों बुलाया? ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁੰਬਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, जी। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੋਸਤ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅਗਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਂਪ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਪ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਲੈਂਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਠਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸੁੰਬਲ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਪ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ। ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਪੌਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੌਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਪ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਲੈਂਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਗਿਰਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਧਰ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਸੂੜੀ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ। पानी मंगवाइए। होश करो, यकीन आ गया? यकीन आ गया। पक्की गल है? पक्की गल है। ऑडियंस ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ? आ जाएगा। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। Villain.